Hello dear students, welcome back. BJMC 4th semester. Today we have to start up with the lecture 3. The topics we have to cover is types of advertising appeal. In the lecture 2, we did the history and development of advertising and types of advertising. Today the topic is quite different. It is types of advertising appeal. Now what does it mean? It is a flow where you are appealing for your advertising products so that your customers, your audience could reach to your product. Okay, तो जिस तरीके से आप अपील करते हो कि किस तरीके आपका जो एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट है उसको लोग खरीदें, और इसीलिए हमें अपील करनी है कि आप अपने प्रोडक्ट की एडवांटेजेस कैसे बना सकते हैं. So the first important types of advertising appeal is appeal to emotion. Although people like to perceive themselves as rational beings, their reality is mainly to shaped people by social interaction, emotions, customs and culture. Appeal to emotion to win your customers over and persuade them to buy. This is what the fact I told कि किस तरीके से हम अपने ही चीज़ों को, जो हमारा प्रोडक्ट है उसको बेचने के लिए किस तरीके से हम अपील करेंगे, राइट. So emotional advertising takes into the consideration emotions linked to the personal and social needs. Reaching consumers by appealing to their emotions is one of the most effective and persuasive advertising techniques. Some of the common ad themes appealing to feeling and values such as love, happiness, family, friendship, need for fame, respect and recognition. So here is the version of that particular topic which I told कि how it is the appeal to emotion. तो इसका हिंदी में भी आपको ट्रांसलेशन है यहाँ पे. अपील टू इमोशन जिसे कहते हैं हम भावना के लिए अपील करना. तो जो हमारा एडवर्टीज़मेंट है उसके मुख्य रूप से जो हमें अगर देखना है तो हमें अपनी भावनाओं, अपनी रीति रिवाजों, अपनी संस्कृति से लोगों को आदर करना होता है. तो ठीक उसी तरह हमें अपने ग्राहकों को जीतने के लिए, उनकी फीलिंग्स को जीतने के लिए, उनकी भावनाओं से अपील करने के लिए, उन्हें ख़रीदने के लिए हमें किसी तरह राज़ी करना होता है. तो जो भी हमारे एडवर्टीज़मेंट प्रोडक्ट है, अपने ग्राहकों का दिल जीतना है तो उन्हें कहीं ना कहीं अपनी भावनाओं से हमें उनका दिल जीतना होता है. सो भावनात्मक विज्ञापन ये प्राकृतिक है और सामाजिक आवश्यकताओं से जुड़ी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमें इस चीज़ को करना होता है, सो दैट हमें अपने अपील से खुशी खुशी, प्रेम पूर्वक जो हम अपने समाज से अपील कर रहे हैं वो हमें अपनी चीज़ों को, हमारी आवश्यकता को पूरा करने के लिए उन्हें पूरा कर सकें. ओके, द नेक्स्ट इज़ अपील टू फियर. अपील टू फियर इज़ रिलेटेड जो आपके डर से होती है, राइट. So scaring your customers into buying things is not good advertising strategy unless it is Halloween and you want to use some relevant imaginary. Fear is usually used only combined with one of the other advertising appeal. An introduction may be scary, natural. अब fear appeal है तो कोई आपका कस्टमर क्यों आएगा आपके पास. But the most common fear involves in some kind of loss. इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि कहीं ना कहीं लॉस है आपका, उस चीज़ का जो डर होता है एडवर्टाइजिंग में, वो चीज़ को हमें किसी तरह बाहर लाना है, लोगों को बताना है कि क्या क्या आपके चीज़ों से, इस एडवर्टाइजिंग से आपको कितनी बेनिफिट है. तो हमें इस टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग अपील का भी यूज़ करना पड़ता है. So we have to keep in mind that some kind of loss to have to tell to the customer. तो जैसे लॉस किस तरीके से होगा, हेल्थ का लॉस हो सकता है, वेल्थ का लॉस हो सकता है, सेफ्टी किस तरीके से रखें आपको,
ब्यूटी और अपॉर्चुनिटी, तो समहाउ कुछ एड्स ऐसे होते हैं विच आर ट्रेंडिंग यू फॉर द अप्रोच ऑफ लॉस. And briefly introduction the problem and focus on the solutions and positive aspects. Email examples are the very interesting image and create the atmosphere of being lost in the dark fairy tale forest. It appeals to fear through imaginations and draws up some worrying scenarios. Okay? तो डरने की अपील से कुछ चीज़ें, कुछ एडवर्टीजमेंट्स ऐसे होते हैं जो आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड, आपके हेल्थ से हो गया, आपके वेल्थ से हो गया, आपके अकाउंट पेमेंट से हो गया, इनकम से हो गया, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे एड्स बनाए जाते हैं जो आपको अपील किए जा रहे हैं कि आप अपनी सुरक्षा किस तरीके से अपने हाथ में रखें और उस एडवर्टाइजमेंट को फॉलो करें. सो द बेसिक, इफ़ वी टॉक अबाउट की लेटेस्ट एग्जाम्पल, सो इट इज़ रिलेटेड टू दिस पैंडमिक जो आपका कोरोना सा चल रहा है. तो उसमें भी अगर आप देखें तो नंबर ऑफ़ एडवर्टीजमेंट्स फॉर सैनिटाइज़र्स, फॉर सोप्स, तो हैंड वॉश करिए, तो सैनिटाइज़ यूज़ करिए, तो प्रोडक्ट्स आर बीइंग ऐसे बनाए जा रहे हैं कि लोग अपील कर रहे हैं, प्रोडक्ट वाले अपील कर रहे हैं आपको ये दिखाने के लिए कि कहीं ना कहीं डर है इफ़ यू आर नॉट यूजिंग दिस पर्टिकुलर थिंग. 100% सेफ्टी के लिए, 99% जर्म्स फ्री अप करने के लिए ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं सो दैट पीपल आर रियली टेकिंग एडवांटेजेस एंड इंटरेस्ट इन बाइंग दैट प्रोडक्ट, क्योंकि हर इंसान को अपनी सेफ्टी चाहिए. तो इस वजह से प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया जाता है फॉर द सेफ्टी एंड फॉर योर हेल्थ पर्पज़. सो द लेटेस्ट एग्जाम्पल्स आर इन फ्रंट ऑफ यू. Then we move on to the third type of advertising appeal is personal appeal. Now, by addressing the most private psychological need, we can make a powerful connection with our customers. Personal appeals frequently used in advertising, including feeling and emotions such as love, friendship, happiness, or security. सो पर्सनल अपील जिसको हम बोलते हैं व्यक्तिगत अपील, तो जहाँ पर आप पर्सनली जा कर के अपनी प्रोडक्ट्स के लिए अपील करते हो, दैट इज़ द पर्सनल अपील. ओके, देन वी मूव ऑन टू द सोशल अपील. सोशल इज़ जनरली रिलेटेड to the sociological, how you are making an appeal, where we linked our public image and the way we interact with others. Socially हम अपने पब्लिक से किस तरीके से इंटरैक्ट करते हैं और बातचीत करते हैं और उनको कन्विंस करते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए. सो पर्सनल अपील ट्राइज टू एड्रेस इंडिविजुअल एंड इंटीमेट्स योर नीड्स. सोशल अपील फोकस ऑन somebody's position within the product, social groups and society as a whole. Social appeals use in advertising connect with customers by using the motives such as status, fame, recognition or respect. So like company, if we talk about for an example, तो कंपनी हो गई आपकी ऊबर ले लो, आप ओला ले लो, तो ये सब क्या है, सोशल अपील एडवर्टीजमेंट के लिए प्रोडक्ट्स है. एक तरीके से कंपनी किस तरीके से अपना स्टेटस बना करके लोगों तक पहुंच रही है. सो टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, इट इज़ अ सोशल अपील वेयर द रिस्पेक्ट एंड डाइवर्सिटी बोथ आर देयर. तो अपील टू पीपल हु बिलीव इन इंक्लूसिव एंड सिंपैथी विद माइनॉरिटीज़. नेचुरल है, एक ऐसा प्रोडक्ट है ऊबर एंड ओला जहाँ पे रिस्पेक्ट भी आपको मिल रही है विद द डाइवर्सिटी, और लोग बहुत आराम से लीव करके चले भी जाते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. दे आर बिलीविंग इन द सिंपैथी विद द माइनॉरिटीज़. सो सामाजिक अपील जिसे कहा जाता है, दैट इज़ द सोशल अपील. देन वी आर मूविंग टू द अपील टू पॉपुलैरिटी. अब इस तरीके से अपील करना है जो आपको पॉपुलैरिटी के बेस्ड पर हो. सो द अर्लीस्ट वे टू कन्विंस somebody to buy product or service is to prove that everyone has done it already. मतलब पॉपुलैरिटी
का अपील ये मतलब हुआ कि कोई भी प्रोडक्ट जब आप किसी के पास लेके जा रहे हो, उसे कन्विंस कर रहे हो, उससे अपील कर रहे हो कि आप इसे ले लीजिए, ये बहुत बेहतरीन है। यू मस्ट हैव सीन दैट व्हेन एनी ऑफ द एडवर्टाइजिंग मार्केट, जब हम मार्केटिंग करते हैं तो वहाँ पे जब लोग होते हैं तो वो किस तरीके से अपील करते हैं आपके डोर टू डोर आकर के फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, कि आप इस प्रोडक्ट को लीजिए। और आपको पता नहीं है कि आपके आस ही पास के घर के 10 घरों में से इन लोगों ने लिया है, उधर पीछे भी 5 घरों में से लिया है। तो ये क्या होता है कि ये प्रोडक्ट की अपील दिखा रहा है कि कितना पॉपुलर है हमारा प्रोडक्ट, और इसीलिए आप भी खरीदिए। बिकॉज once something becomes very wide recognized phenomena or event, it becomes obvious पॉपुलर। तो जब एक जना ले लेगा, 10 जने ले लेंगे, और फिर सामने वाला आपको लिस्ट दिखा रहा है कि देखिए इतने लोगों ने आज के दिन इतनी ज़्यादा खरीदारी हुई है इस प्रोडक्ट को ले करके, तो कहीं ना कहीं ये फेमस हो चुका है, इट इज़ पॉपुलर। एंड इसीलिए वी आर ट्राइंग टू कन्विंस टू द आवर कस्टमर्स, जिससे कि और हमारे कस्टमर्स बढ़े और ये हमारा प्रोडक्ट और वैल्यूबल बन जाए। सो दिस इज़ समटाइम्स रिफर्ड टू एज द ब्रांडमेंट एफर्ट। The more popular something means, the more people to buy it on, and consequently it becomes even more popular, and this can become an important asset and key point of your marketing strategy. So popular appeal का मतलब होता है लोकप्रियता, जिसे किस तरीके से लोगों तक पहुंचने में इतने प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छे से पॉपुलैरिटी मिली है, और इसीलिए कन्विंस करते हैं हम दूसरे कस्टमर्स को जिन्होंने नहीं ख़रीदा है, तो उनको ये बताते हैं कि ये प्रोडक्ट कितना ज़्यादा फेमस हो चुका है, इतने ज़्यादा पॉपुलर है, लोकप्रिय है लोगों के बीच में, इतने लोग ख़रीद चुके हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं इसको यूज़ करके देखिए। देन द सिक्स्थ अपील इज़ अपील टू अथॉरिटी। Now appealing to authority is very different from getting a celebrity endorsement. Okay, so appeal to authority is very different from granting the celebrity endorsement. Now sometimes what we see कि advertising appeals overlap. Okay, so but in some fields experts and top professionals not easily recognizable. So the value of their expertise, however, it appreciated. That is much very much important. कि किस तरीके से एक अथॉरिटी है, यानी प्राधिकरण जिसे बोलते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल द प्लम गाइड। अब एक जो आपका कंपनी है प्लम गाइड, व्हाट इज़ काइंड, इट्स अ टाइप ऑफ अथॉरिटी। इट अपील्स टू दोज हु वैल्यू गुड टेस्ट। उन्हीं से अपील करते हैं जो इसके लिए बेनिफिट में अच्छे हैं। हर एक कस्टमर से, हर एक ऑडियंस के जाकर के अपील नहीं करते। इट ओनली अपील्स टू दोज हु वैल्यू फॉर द गुड प्रोडक्ट्स। सो वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल इज़ द प्लम गाइड टिपिट से। उनकी टीम ऐसी है, आर्किटेक्ट, दे आर द आर्किटेक्चर्स, जहाँ पे इंटीरियर डिज़ाइनर्स करना है या अदर प्रोफेशनल्स, दोज हु गिव द स्टैम्प टू अप्रूवल, हर एक के घर में जाकर के नहीं अपील करेंगे। दे विल बी ओनली डूइंग टू द गुड एरियाज़ वेयर दे नो कि हाँ, जहाँ पर हमारी एक अपार्टमेंट्स में जैसे चले गए तो वहाँ पर उनकी पहुँचे, एक अपार्टमेंट में जाएंगे, नीचे से ऊपर तक के नंबर ऑफ़ फ्लोर्स आर देयर, तो वहाँ पे जब एक ने अगर करा है तो नेचुरल है कि 10 लोग और बुलाएंगे। एंड फॉर दैट इनके एक अपीलिंग प्रोसेस है कि वेबसाइट पे डाल दो कॉन्टैक्ट नंबर के साथ विद द एडवर्टीजमेंट फुल ऑफ ऑल द थिंग्स एंड द सिनेरियो इज़ इन फ्रंट ऑफ इट। तो ये कस्टमर को किस तरीके से रिवील करने का एक तरीका होता है। तो जहाँ पे अथॉरिटीज़ है, तो दिस इज़ नोन एज द प्राधिकरण से अपील करना। तो अधिकार के लिए आपको अपील करने की किसी भी सेलिब्रिटी को समर्थन प्राप्त करने के लिए बहुत अलग होता है, नेचुरल है। लेकिन कहीं ना कहीं जब हमें अपनी एक अथॉरिटी बनानी है तो विज्ञापन से, एडवर्टीज़मेंट से कैसे करेंगे, वेबसाइट के थ्रू वी कैन बी डू। एंड दी अपार्टमेंट से एक जगह चले गए तो वहाँ से फिर पूरे उसमें फैल गया कि हाँ, दिस इज़ अ काइंड ऑफ पर्टिकुलर कंपनी जो बहुत अच्छी है और आप, हमने ट्राई किया है तो आप भी एक बार ट्राई करिए।
So this is the way the process keeps on moving. So that is the appeal to authority. Next, we are moving to the appeal to logic. Now, what is logic? Something which is related with the mind and soul. So if you don't know that how to reach your customers, अगर आपको ये तरीका नहीं पता है, आप एडवर्टीज़मेंट कर रहे हो एंड आपको नहीं पता कि आपको अपने कस्टमर्स तक कैसे पहुंचना है, तो यू फॉर द हर्ट्स एंड इमोशंस यू कैन स्टिल ट्राई टू कन्विंस देयर ब्रेन. आपने अपने दिल से बोल दिया, अपनी भावनाओं से बोल दिया, अपील टू इमोशंस भी लगा दी, अपील टू आपने सब कुछ कर दिया, बट स्टिल द कस्टमर इज़ नॉट कन्विंसिंग विद यू. तो यू हैव टू नाउ प्ले विद योर लॉजिकल आइडिया. अपने लॉजिक्स लगा करके अपील टू द फैक्ट, कुछ सच्चाइयाँ बता करके या कैलकुलेबल बेनिफिट्स बता करके, इवन द डेमो करके अगर करना चाहें तो एडवर्टीज़मेंट्स कुछ ऐसे होते हैं कि दैट नंबर ऑफ़ पीपल आर कमिंग लाइक फॉर द ब्यूटी प्रोडक्ट्स. अब डोर टू डोर सेल्स गर्ल्स आर कमिंग और वो अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से कन्विंस करके बेचती है. दे आर अपीलिंग विद द लॉजिक ऑल्सो. हाउ कम? कोई भी कस्टमर ब्यूटी प्रोडक्ट उठा करके कैसे एक के संग एक फ्री, फाइन. फिर सेकेंड प्लस पॉइंट, आप एक हाथ पे लगा के दिखा रहे हो, दूसरे हाथ पे नहीं लगाया है, एंड द चेंज ऑफ द कलर ऑफ योर हैंड. सो दिस इज़ हाउ दे आर यूजिंग देयर ब्रेन ट्रिक, हाउ दे आर अपीलिंग विद द लॉजिक. सो दिस इज़ द बेसिक लॉजिक जहाँ पे आपको अपने प्रोडक्ट के लिए एडवर्टीज़मेंट करना पड़ता है सो दैट योर कस्टमर्स, योर ऑडियंस आपसे सहमत हो करके उस चीज़ को ख़रीद सके. एंड दिस इज़ व्हाट द बेसिक अपील फैक्टर. तो जो मॉडर्न बायर्स होते हैं ट्राई टू मेक देयर रैशनल डिसीजन सो दैट इट्स गुड टू टॉक द लैंग्वेज ऑफ टैंजिबल बेनिफिट्स. तो तर्क का अपील जिसे भी बोला जाता है, अपील टू लॉजिक. Then we are moving to the next. This is the last point. Appeal to humor. The more engaged your customers get, the easier it is to convince them to buy. Humor, जहाँ पे हास्य का अपील बोलते हैं. तो इसमें क्या होता है, आप जितने ज़्यादा अपने कस्टमर से इंगेज्ड रहेंगे, मतलब एक बार प्रोडक्ट कभी किसी ने ख़रीद लिया तो हाउ आप इंगेज कैसे रहेंगे. यू फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी. ये दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान बहुत जल्दी वक्त में नहीं बदलता है. तो जब हम एडवर्टीज़मेंट कर रहे होते हैं और हमारी कंपनी में कुछ नया लॉन्च होता है, तो व्हाट जनरली कंपनी डू, अपने एडवर्टाइजमेंट को और अच्छे से प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए मोबाइल नंबर्स पे और ईमेल एड्रेस पे उस प्रोडक्ट के बारे में तुरंत आपको नोटिफिकेशन करती है. सो दिस इज़ अपील टू ह्यूमर, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इंगेज रहेंगे अपने कस्टमर से, उतने ही ईजी तरीके से आपका कस्टमर आपसे कन्विंस होकर के आपके प्रोडक्ट को ख़रीदेगा. सो इफ़ यू कैन मेक देम स्माइल, you are good in a great position to sell. And the bad news is that the jokes tends to be the funny only ones. And the good news is that when it comes to your email marketing company, once is enough. So there are a number of kind of companies which are doing, for suppose JQ factories, or you could say Amazon, Flipkart, roofers. So there are a number of advertisements company, those who are making their appeal to humor, because once you are connected to that particular company, you will be connected forever until and unless जब तक आप अपने कोई मोबाइल फ़ोन्स, मोबाइल नंबर्स या ईमेल एड्रेस नहीं चेंज करते हैं, तब तक इट इज़ वेरी बेनिफिट फॉर इट. सो दिस इज़ कॉल्ड द हास्य की अपील, जिसे हिंदी में बोलते हैं, बट दिस इज़ द अपील टू ह्यूमर. तो ये थे कुछ आपके बहुत इम्पॉर्टेंट एडवर्टीज़मेंट टाइप्स ऑफ अपील्स विच आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द फैक्टर ऑफ एडवर्टाइजिंग. तो बहुत ज़रूरी था इनको जानना. सो डियर स्टूडेंट्स,
Please try to learn and understand all these kind of appeals which are very much benefit for you. Try to understand each and every with their examples so that every appeal is clear in your mind. So that's all for today. Thank you, class. Have a good day.